Good morning, class 9th. How are you, children? Children, yesterday we have completed our history chapter. This is Monica Soni, your SST teacher from Great Mission Public School, Ramnagar. Children, yesterday we have completed our history chapter. Okay, so then I will start now next chapter, that is your drainage system. So in this lesson our theoretical part is deducted from the CBSE. Only the map will come from this chapter. So I will teach you only the map. So you have to listen carefully the map today, because only map will come from that lesson. So mostly the questions will come from the drainage pattern, drainage system. Okay, so now firstly I will tell you the rivers. Our two types of rivers we are having. The first, the Himalayan rivers, and the second is the peninsular rivers. So what is the difference in these two types of rivers? The Himalayan rivers, those flow from the Himalayas, the mountains, the Himalayas mountains. हमारी Himalayan rivers वो हैं जो flow करती हैं Himalayan mountains से, like Indus river, Ganga river and Brahmaputra river. Okay, and they are having the water throughout the year. क्यों? क्योंकि these are coming from the glaciers which is in the Himalayan regions. Glaciers means the mountains of the ice. ठीक है, and our the next is the peninsular rivers. Peninsular rivers means कि these are the rivers, those are the seasonal river. Seasonal means that during the monsoon season these rivers are having the water, and when the monsoon season is not there, so these rivers having a very little water. Yes, some rivers are dried up. So it means कि these rivers are this type of difference. So firstly I will tell you about the Himalayan rivers. The first is the Indus river. Like you can see in the map, the Indus river rises in the Tibet side. इंदस रिवर हमारी तिब्बत साइड से राइज करती है नियर द लेक ऑफ मानसरोवर. ओके, एंड फ्लोइंग वेस्ट साइड इन इंडिया. अब वेस्ट साइड की तरफ वो फ्लो करती है एंड इट एंटर्स इन इंडिया इन द वेस्ट साइड इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, इट फॉर्म्स अ पिक्चरेस्क जॉर्ज इन दिस पार्ट. वो उसमें एक जॉर्ज भी बनाती है. पिक्चरेस्क इट मीन्स कि इट इज़ ब्यूटी, लुक लाइक अ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल इट लुक्स इन दिस पार्ट. एंड सेवरल ट्रिब्यूटरीज लाइक जस्कर, लाइक नुब्रा, मतलब सेवरल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन this river in this part. Okay, in the Kashmir region. Then Indus flows through the like mountains of that place. उस place के mountains पर बहती है हमारी इंदस रिवर. Then when it comes in the पाकिस्तान side, जब हमारी इंदस रिवर पाकिस्तान साइड में आती है, then the many tributaries of this side join the Indus river like Satluj river, Ravi, Chenab, Jhelum river. These all rivers join in the इंदस रिवर. ये सारी रिवर्स हमारी सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं इंदस रिवर को. ओके, एंड बियॉन्ड दिस द इंदस फ्लोज साउथवर्ड. अब हमारी इंदस रिवर साउथ की साइड फ्लो करती है विद दीज ऑल ट्रिब्यूटरीज एंड इट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी. जो हमारी इंदस रिवर का डाउनफॉल होता है दैट इज़ इन द अरेबियन सी. यू नो चिल्ड्रन दैट हमारी जितनी भी रिवर्स होती हैं, वेदर द हिमालयन और द पेनिनसुलर रिवर्स, दीज all rivers are flowing throughout the India. पूरे भारत में flow करती हैं and then at last it mix into the water bodies, big water bodies, whether Arabian Sea or the Bay of Bengal. तो Indus river fall into the Arabian Sea and the length of the Indus river is the 2900 किलोमीटर. हमारी length जो होती है Indus river की, that is 29 kilometer. Okay, the next I will tell you about Ganga river system. Our Ganga river system, the Ganga river system, it is very important river of India. Children, the head water of the Ganga is called the Bhagirathi. It means जहाँ से हमारी river शुरू हो रही है गंगा river, head water जो है इसका that is the Bhagirathi river. यानी mountains Himalayas में it is known as Bhagirathi, but it comes from the Gangotri glaciers.
उसका भगीरथी का पानी कहाँ से आ रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से, एंड व्हेन इट कम्स इन इंडिया तो इसका नाम गंगा पड़ गया। तो इसका नाम गंगा क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ इट कम्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर यू नो द माउंटेन ऑफ द आइस विच इज़ इन द हिमालयाज, है ना, एंड देन एट हरिद्वार इट फ्लोज। तो इट मीन्स कि व्हेन इट कम्स फ्रॉम द माउंटेन रीजन, तो हरिद्वार इज़ द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट नॉर्थन प्लेन एरिया वेयर द गंगा रिवर फ्लोज, जहाँ हमारी गंगा रिवर फ्लो करती है, बहती है। देन ऑन द वे द गंगा इज़ ज्वाइंड बाई मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी रिवर्स, अदर रिवर्स होती हैं विच ज्वाइन द गंगा रिवर विच कम्स फ्रॉम हिमालयाज ऑल्सो, लाइक दैट यमुना रिवर। तो यमुना रिवर ऑल्सो कम्स फ्रॉम द हिमालयन साइड, लाइक दैट यू कैन सी, एंड इट ज्वाइंस गंगा रिवर, वो गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। तो देन यमुना रिवर इज कम्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर्स। देन आफ्टर दैट घाघरा रिवर, गंडक रिवर एंड द कोसी रिवर, घाघरा, गंडक एंड कोसी, these three rivers also join the गंगा रिवर। एट लास्ट में हमारी घाघरा, गंडक और कोसी रिवर ज्वाइन करती है किसको, हमारी गंगा रिवर को। ओके, देन द गंगा एंड एट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। अब ये सब हमारी जो रिवर्स होती हैं, गंगा और यमुना रिवर जब आपस में आ रही हैं तो एक दूसरे के पैरेलल दीज टू रिवर्स आर फ्लोइंग एंड दे मीट, कहाँ मिलती हैं वो, दे मीट इन द एट द इलाहाबाद, इट मीन्स प्रयागराज। और वहाँ आपको पता है चिल्ड्रन की दैट संगम हम क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ हमारी दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, और वो दो नदियाँ कौन सी हैं, गंगा एंड द यमुना रिवर। तो घाघरा, गंडक और कोसी फिर उसमें मिक्स हो जाती हैं एंड दे कम्स फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स। हमारी आप देख सकते हैं मैप में, यू कैन सी इन द मैप घाघरा, गंडक एंड कोसी, दीज रिवर्स आर कम फ्रॉम द नेपाल साइड हिमालयाज, एंड दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन। ये रिवर्स जो हमारी होती हैं, दीज आर हैविंग द फ्लड प्लेन्स इन द एरिया व्हेन दे कम्स फ्रॉम द नेपाल साइड। तो मानसून सीजन में इनमें कभी कभी फ्लड भी आ जाता है। देन मेन सम अदर ट्रिब्यूटरीज आर देयर, कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं हमारी गंगा रिवर्स की, विच फ्लो इन द पेनिनसुलर अपलैंड, इट मीन्स जो हमारे प्लेट्यू रीजन्स में फ्लो करती हैं, लाइक द चंबल रिवर यू कैन से, बेटवा रिवर यू कैन सी, एंड सोन रिवर you can see the Son river. It means Chambal river, Betwa river and Son river you can see, which also join the Ganga river ahead. These rises from the semi-arid areas, okay, and they are having very little water in them. तो enlarge with the water from its right and left bank tributaries, the Ganga flow eastward. अब इन सब ट्रिब्यूटरीज के साथ many tributaries Ganga having, चंबल, बेटवा, यमुना, घाघरा, गंडक, सोन and Kosi river, the Ganga river flows into the east side of the West Bengal. और जब वो वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है तो इट इज़ नोन एज द गंगा रिवर, एंड फरक्का विच इज़ इन वेस्ट बंगाल वो वहाँ से फ्लो करती है। तो दैट इज़ द नॉर्थन पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। तो ये हमारा नॉर्थन पॉइंट भी होता है गंगा डेल्टा का, जिसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और हमारी यमुना रिवर ऑल्सो मीट्स विद गंगा, एंड एट लास्ट इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। यू कैन सी दैट लाइन ऑफ द गंगा रिवर कि दैट इट फ्लोज इनटू एट लास्ट इन बे ऑफ बंगाल। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड इनटू द बांग्लादेश एंड ज्वाइन बाय द ब्रह्मपुत्र। बाद में ये ब्रह्मपुत्र रिवर को भी ज्वाइन करती हैं, और ये सब जो हमारी रिवर्स ज्वाइन कर रही हैं, डू नो दैट गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मीट्स द वन प्लेस इन द बांग्लादेश, और वहाँ एक डेल्टा बनता है बहुत बड़ा, द माउथ ऑफ दीज रिवर्स विच इज़ नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। और गंगा रिवर की जो हमारी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज़ 2500 किलोमीटर। ओके, तो दैट इज़ अवर गंगा रिवर वी हैव लर्न इन द map. Now I will tell you about our Brahmaputra river. Now what is the from where it flows? तो Brahmaputra also rises in the तिब्बत side. ये तिब्बत की ईस्ट साइड से राइजेज होती है। दैट इंदस और सतलुज रिवर सोर्सेज के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड इट इज़ नोन एज द सैंगपो रिवर इन चाइना। चाइना में जब ब्रह्मपुत्र फ्लो होती है वहाँ पर उसको सैंगपो के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इट इज़ स्लाइटली
लॉन्गर देन द इंडस से थोड़ी सी लंबी होती है हमारी ये रिवर, एंड इन द मेन कोर्स दैट इज़ द आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया फ्लो करती है व्हेन एंड इट एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश साइड, और ये अरुणाचल प्रदेश साइड से फ्लो करती है हमारे देश में. देन इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज़ ज्वाइंड बाय द दिबांग, लोहित एंड मैनी अदर रिवर्स. देखिए दिहांग, लोहित और मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर्स को आसाम की साइड में ज्वाइन करती है. देन आफ्टर इन तिब्बत दिस रिवर हैविंग द वेरी स्लो कोर्स, बहुत ज़्यादा स्लो होती है यहाँ. क्यों? क्योंकि वेरी लिटिल वाटर इज़ देयर, सिल्ट इज़ ऑल्सो लिटिल. क्यों? क्योंकि तिब्बत साइड इज़ वेरी ड्राई एरिया. बट व्हेन इट एंटर्स इनटू द इंडिया, तो इन इंडिया देयर इज़ द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो दिस रिवर full volume of water in this and a very good amount of silt. Then after the Brahmaputra has a braided channel, एक बड़ा चैनल बन जाता है. It make a very big mouth and Assam and forms many riverine island, और असम की साइड जाकर बहुत सारे इसके आइलैंड भी बनते हैं. तो every year this during the rainy season this river overflows and causing the wide spread devastation. जैसे असम में अभी भी बाढ़ आ रखी है during this time also, तो that is because of the Brahmaputra river. Okay, तो it also join the Ganga river, make the Sundarban delta and flow into the Bay of Bengal. So today I have told you about your Himalayan rivers, Indus river, Ganga river and Brahmaputra river. Then next video I will tell you about the peninsular rivers. Okay, so you have to read this and carefully you will understand. Thank you.